أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخير فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے اور سورۃ النعم ہے، نعمتوں والی سورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر میں جو انسانوں کے اوپر میں انعامات نازل فرمائے، نعمتیں نازل فرمائی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں کیا ہے. گزشتہ کل جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر انعام فرمایا کہ اس کے مطالبہ کے بغیر اور اس کی ماں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا اور معمولی نطفے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور جو پیدا کیے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اور مختلف قسم کے جانوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جن کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کے اون اور بالوں سے جو ہے اپنے بدن کے اوپر میں لباس پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا لباس بناتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر میں جو اور نعمتیں نازل فرمائی اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں تذکرہ فرمایا. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان پر سے پانی برسایا، لکم تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر سے پانی برسایا. منہ شراب، اس سے تم پانی بھی پیتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی بارش کے پانی سے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون، اور اس درخت کے جو پتے وغیرہ ہیں اس کو تم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ فرمایا، زمین کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد بیچ کے اندر میں بادل اور آسمان سے برسنے والی
बारिश का अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में तज़किरा फरमाया कि ये जो पानी है उसी के ज़रिए से तुम पानी पीते भी हो और उसी से जो है दरख्त भी उगाते हो और किस्म किस्म की चीज़ें उसी पानी के ज़रिए से उगाते हो। शजरन का माना उर्दू के अंदर में दरख्त का आता है और शजरन का माना आम तौर पर ज़मीन के ऊपर में जितनी भी चीज़ें उगती है, घास है या चारा है या दरख्त, उन तमाम को शजरन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ शजरन का माना सिर्फ दरख्त की नहीं है बल्कि शजरन का माना घास और चारे की भी है। इसलिए कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमिनहु शजरुन फीही तुसिमून, उसके अंदर में तुम अपने जानवरों को चराते हो। तो चराने के अंदर में दरख्तों को नहीं चराया जाता, घास वगैरह को चराया जाता है, इसलिए शजरुन का माना घास और दरख्त का भी किया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर से पानी बरसाने के बाद ज़मीन के ऊपर में जो पानी बरसा और उसके पानी के ज़रिए से क्या क्या दरख्त और क्या क्या फल और क्या क्या मेवे इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, उसका तज़किरा है। यंबितु लकुम बिही अज़्ज़रअ, इस आसमान के पानी से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए उगाता है अज़्ज़रअ। ज़रा खेती को कहते हैं, अनाज और गल्ला जो इंसान खाते हैं या जानवर खाते हैं उसको ज़रा और खेती कहते हैं। इसी पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए खेती को उगाता है। वज़्ज़ैतून, और जैतून को उगाता है। वन्नखील, और खजूर को उगाता है। वल्अनाब, और अंगूर को उगाता है। वमिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फलों को अल्लाह तबारक व तआला उगाता है। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसके अंदर लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, एक अलामत है, निशानी है, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर दलालत करने वाली निशानी है, अल्लाह ताला के खालिक और मालिक होने पर निशानी है। लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए कि जो इसके अंदर में गौर व फिक्र करते हैं। उलमा ने लिखा है कि बरसने वाला पानी बारिश का एक किस्म का पानी होता है, एक ज़मीन के अंदर में बरसता है, उसके अंदर में मेहनत करने वाला किसान एक होता है और वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को जब बोया जाता है तो अलग अलग चीज़ें उसमें उगती है और अलग अलग के फल अलग अलग मज़े के साथ और अलग अलग के फूल अलग अलग रंगों के साथ जो उगते हैं और जो पैदावार है और जो फल हैं अलग अलग रंगों के और अलग अलग मज़े के, तो ये पैदा करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। पानी एक है, ज़मीन एक है, मेहनत करने वाला आदमी एक है, लेकिन किस्म किस्म के फ़ायदे इससे जो हो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दावत देते हैं कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन चीज़ों के अंदर में अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर, अल्लाह ताला के खालिक और मालिक होने के ऊपर में एक निशानी है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करते हैं। ज़ाहिर बात है कि कायनात की चीज़ों को देखने के बाद आदमी गौर व फिक्र न करे तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये चीज़ें हैं, इसके अंदर में गौर व फिक्र करना चाहिए। ये मज़मून पहले से चला रहा है, मक्की सूरतों के अंदर में कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयात कौनिया, कायनात के अंदर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ रखी हुई है उसके अंदर में गौर व फिक्र करना है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रात को और दिन को ताबे कर दिया, रात को और दिन को तुम्हारे काम के अंदर में लगा दिया। वश्शम्स वल कमर, यानी सख्खर शम्स व सख्खर अल कमर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज को ताबे कर दिया और तुम्हारे लिए चांद को ताबे कर दिया। वन्नुजूम, और सितारों को मुसख्खरातुन बिअम्री, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से
ताबे हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इन तमाम चीज़ों के अंदर में अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं और जो समझ रखते हैं। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि रात और दिन को और सूरज और चाँद को और सितारों को इंसान के ताबे करने का माना और मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बड़ी बड़ी मखलूक को इंसान के फ़ायदे के लिए चला दिया और इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाया। अद्दुनिया खुलिक़ लकुम व इन्नमा खुलिक़्तुम लिल आखिरा, हदीस शरीफ के अंदर में है कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। तो रात और दिन, सूरज और चाँद और सितारे, इनको ताबे करने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाई है। ताबे करने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात और दिन को इंसान के ताबे इस तौर पर कर दिया कि इंसान के हुक्म से रात होती हो या इंसान के हुक्म से दिन होता हो या इंसान के हुक्म से सूरज निकलता हो या इंसान के हुक्म से सूरज डूबता हो, इंसान के हुक्म से चाँद निकलता हो या इंसान के हुक्म से चाँद गुरूब हो जाता हो। इसी तरीके से सितारे, इस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ताबे फरमाया नहीं है, वरना दुनिया के अंदर में इख्तिलाफ और झगड़ा होता। कुछ लोग कहते कि नहीं अभी सूरज बाकी रहना चाहिए, कुछ लोग कहते कि नहीं सूरज डूब जाना चाहिए, कुछ लोग कहते कि रात आ जानी चाहिए, कुछ लोग कहते कि नहीं दिन आ जाना चाहिए। ये इख्तिलाफ और झगड़ा पैदा होता। इसलिए इनका निज़ाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कब्ज़े कुदरत के अंदर में रखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इन चीज़ों के अंदर में अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं लिक़ौमिन याक़िलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, समझ रखते हैं और समझते हैं। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निज़ाम चलाया है, रात का आना फिर दिन का आना, दिन का ख़त्म होना, रात का शुरू होना, रात का ख़त्म होना, दिन का आना, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, सितारों का ज़ाहिर होना, ये तमाम जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाया है तो ये निज़ाम अपने दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। दस्तूर के मुताबिक निज़ाम का चलना ये दलील और गवाही है कि इनका पैदा करने वाला और इनका बनाने वाला एक है। कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, ज़मीन और आसमान के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अगर चंद माबूद होते तो ज़मीन और आसमान के अंदर में फसाद मच जाता। लफसदता, ज़मीन और आसमान के अंदर में फसाद मच जाता। फसाद का न मचना और वक्त मुकर्रर पर रात का आना, दिन का आना, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, चाँद का निकलना, चाँद का छुप जाना वगैरह, ये दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और यही पैदा करने वाला है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसके अंदर में अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों का तज़किरा फरमाया। ये 3 आयतें जो भी आपके सामने तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ में अर्ज़ किया गया, इसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर जो नेमतें नाज़िल फरमाई और जो इनाम फरमाए उसका तज़किरा फरमाया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अलवानुहु, वमा ज़रअ, और जो चीज़ें फैला रखी है तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर में, या जो चीज़ें फैला रखी है तुम्हारे फ़ायदे के लिए ज़मीन के अंदर में, मुख्तलिफ़न अलवानुहु, उनके रंग अलग अलग है। ज़मीन के ऊपर में जितनी भी चीज़ें हैं, आदमी जब सफ़र करता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों की ज़मीन उसके सामने आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के फल
उसके सामने आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त मुख्तलिफ रंगों के पत्ते वाले उसके सामने आते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा कर रखा है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, बेशक इसके अंदर में भी अलबत्ता निशानी है। निशानी है यानी अल्लाह ताला के वजूद को बतलाने वाली निशानी है। लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, उन लोगों के लिए कि जो नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात की चीज़ों को बयान फरमा रहे, आसमानी चीज़ों को बयान फरमाया। फ़िज़ा की जो चीज़ थी बारिश और बादल, उसको अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। आसमान के पानी से जो चीज़ें ज़मीन के अंदर में उगती है, खेती बाड़ी, जैतून और खजूर और अंगूर और किस्म किस्म के फल, इनको अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर रात और दिन, सूरज और चाँद और सितारों के निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए चलाया, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फिर अपने इनामात को जिक्र फरमाता है। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा, अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है कि जिसने समंदर को ताबे कर दिया, समंदर को मुसख्खर कर दिया इंसानों के लिए। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम समंदर से ताज़ा गोश्त खाओ। लहमन का माना गोश्त और तरियन का माना ताज़ा, तुम ताज़ा गोश्त खाओ। व तस्तखरिजू मिन्हु, और समंदर से तुम निकालो हिल्यतन, जेवर और गहना, तलबसूनहा, जिनको तुम पहनते हो। व तरल फुल्का, और आप देखते हैं कश्तियों को, मवाखिर फीही, समंदर के अंदर में पानी को चीर करके चलने वाली। वलितब्तगू मिन फदलिही, और चाहिए कि तुम तलाश करो अल्लाह तबारक व तआला के फضل में से। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर जो है, समंदर को भी इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाया। और लहमन तरिया से मुराद जो वो मछली है। लहमन का माना गोश्त और तरियन का माना ताज़ा गोश्त। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि खुश्की के अंदर में जो जानवर हैं और उन जानवरों का खाना अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ और हलाल करार दिया हुआ है। यानी हलाल जो जानवर हैं उनको अगर इंसान खाना चाहे तो उसको पकड़ कर, उसको ज़बाह करके और उसको साफ करके खाया जाता है, यानी लंबी मेहनत करना पड़ती है। उसके मुकाबले के अंदर में समंदर से अगर मछली पकड़ ली जाए तो मछली को ज़बाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए इसको ताज़ा गोश्त और लहमन तरिया के लफ्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन, और इस समंदर से तुम जेवर निकालते हो। हिल्यतुन जेवर को भी कहते हैं, हिल्यतुन मोती को भी कहते हैं। तलबसूनहा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्दों को कहता है अल्लाह ताला के तलबसूनहा, समंदर से जो मोती वगैरह जेवरात जो निकलते हैं, ये मर्दों तुम उसको पहनते हो। हालांकि जेवरात जो है मर्द नहीं पहनते, औरतें पहनती है। इसलिए उलमा किराम ने लिखा है कि जेवरात पहनती है औरतें, और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बयान फरमाते हैं कि मर्द तुम पहनते हो। मतलब ये हुआ कि औरतों के लिए जो ज़ेब व ज़ीनत करने का जो हुक्म दिया गया है और जेवरात जो पहनने का जो हुक्म दिया गया है, ये मर्द की खुशी के लिए और मर्द को खुश करने के लिए हुक्म दिया गया है। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि अगर कोई औरत ऐसी है कि जो पाकी साफ़ी का लिहाज नहीं रखती, कपड़ों का लिहाज नहीं रखती, मैले कुचीले गंदे कपड़े अगर वो पहनती है, तो शरीयत में मर्द को इख्तियार दिया हुआ है कि मर्द औरत के ऊपर में ज़बरदस्ती करे और उसको अच्छे कपड़े पहनने पर और ज़ेवरात पहनने के ऊपर में उसको मजबूर करे। तो गोया औरत का ज़ेवरात का पहनना ये मर्दों के लिए होता है और मर्दों की खुश करने के लिए होता है। इसलिए ज़ेवरात की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों की तरफ करके फरमाया कि मर्दों तुम उन ज़ेवरात को पहनते हो। और इसके अलावा दूसरे मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि
समंदर से जो मोती वगैरह निकलते हैं तो उसकी अंगूठी वगैरह बना करके मर्द भी पहनता है, जैसे कि चांदी की अंगूठी है, ये पहनना मर्द के लिए जायज़ है। वतरल फुल्क मवाखिर फीही, और आप समंदर के अंदर में कश्तियों को देखोगे, मवाखिर फीही, उस समंदर के अंदर में पानी को चीर करके ये चलती है। वलितब्तगू मिन फज़लिही, और चाहिए कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के फजल को समंदर के अंदर में तलाश करो, या ये कि समंदर का सफ़र करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर या एक शहर से दूसरे शहर कश्ती के ऊपर सवार होकर जाकर अल्लाह तबारक व तआला के फजल को यानी रोज़ी को तुम तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की इनामात है, नेमतें हैं। समंदर के अंदर में किस्म किस्म की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है। उलमा किराम ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि खुश्की पर जितने भी जानवर हैं, ऐसे ही जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के अंदर में भी पैदा फरमाए हैं। जैसे खुश्की और ज़मीन के ऊपर में इंसान है, इंसानों के अंदर में भी मर्द है, औरत है, इसी तरीके से समंदर के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पैदा कर रखे हैं। समंदरी इंसान, समंदरी मर्द और समंदरी औरत ये पैदा कर रखे हैं। समंदर के अंदर में भी हयातुल हैवान के अंदर में, जिसके अंदर में जानवरों का तज़किरा है, कौन सा जानवर है, उसको क्या जायज़ है, जायज़ नहीं है, हलाल है या हलाल नहीं है, और उसका खाना, फिर उसके फ़ायदे वगैरह लंबी चौड़ी तफसील किताब अरबी के अंदर में 2 जिल्दों में लिखी हुई है। और उसका तर्जुमा हयातुल हैवानी के नाम से 3 जिल्दों के अंदर में उर्दू के अंदर में किया गया है, सारी तफसील के साथ में लिखा है। उसके अंदर में एक बात लिखी हुई है कि मुल्क शाम का कोई अमीर कश्ती के अंदर में जा रहा था, समंदरी सफ़र कर रहा था। समंदर के अंदर में से एक मछली कूद करके उसकी कश्ती के अंदर में पड़ी, और जैसा कि औरत की शक्ल सूरत के साथ बिल्कुल औरत जैसी, सारी चीज़ें ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी चीज़ें औरत जैसी, उसको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उसको पानी के अंदर में रखा, फिर वो मुल्क शाम ले गया। मुल्क शाम ले जाने के बाद में वहाँ पर एक हौज़ बनाया, और उस हौज़ के अंदर में उस मछली को जो औरत की शक्ल के अंदर में थी उसको डाल दिया। फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि उस अमीर ने जो है उस दरियाई मछली को हो या दरियाई औरत के साथ में जीना किया, जिसके नतीजे के अंदर में बच्चा पैदा हुआ। कुछ बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो बच्चे के बारे में लिखा कि बच्चा अपने बाप की ज़बान भी समझता था और अपनी माँ की ज़बान भी समझता था। बहुत सी बातें उसके अंदर में लिखी हुई है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान के अंदर में इसकी एक बात ये लिखी हुई है, एक मरतबा ये तीनों बैठे हुए थे, बच्चा और उसकी माँ और उसका बाप। तो उसकी माँ ने कुछ कहा, कोई आदमी आया, दाढ़ी वाला कोई आदमी आया, तो उसकी माँ ने कुछ कहा अपनी ज़बान के अंदर में, बच्चा समझा, और बच्चे ने समझ करके ट्रांसलेशन किया, उसके अब्बा को पूछा कि ये क्या कहता है, क्या कहती है। तो यूँ कहा कि जितने भी जानवर हैं उन तमाम की जो दुम होती है वो पीछे होती है और इंसान की दुम आगे होती है। यानी दाढ़ी की तरफ इशारा करके उसने यूँ कहा कि ये दुम जो उसकी आगे, इस तरीके से अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है। वतरल फुल्क मवाखिर फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। आगे अल्लाह तबारक व तआला इनामात का और नेमतों का तज़किरा फरमाते हैं। ये ज़मीन जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई तो ज़मीन के अंदर में ज़लज़ले की शक्ल थी और ज़मीन हरकत करती रहती थी, काँपती रहती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा करके एक मेघ की शक्ल के अंदर में ज़मीन के ऊपर में मार दिए, जिसकी वजह से ज़मीन का ज़लज़ला और काँपना बंद हो गया। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात के अंदर में और अपनी नेमतों के अंदर में ज़िक्र फरमाया। ये भी अल्लाह ताला का इनाम है,
ये भी अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर ज़मीन के ऊपर में अल्लाह तबारक व ताला इन बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा करके मारता नहीं तो ज़मीन हरकत करती रहती। आदमी अगर सोने की हालत में हो और ज़मीन हरकत करे, आदमी चले और ज़मीन हरकत करे, तो बहुत से मरतबा जो है इंसान डर जाए, घबरा जाए। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम है कि ज़मीन के ऊपर में इंसान चैन और सुकून के साथ में ज़िंदगी बसर करे। इसलिए वह अलका फिल अर्द रवासी है, ज़मीन के अंदर में गाड़ दिए बड़े बड़े पहाड़ों को, अन तमीद बिकुम, कि कहीं ऐसा न हो कि तुमको लेकर के माइल हो जाए, झुक जाए। वह अनहारन, और नहरों को पैदा किया, नदियों को पैदा किया, वसुबुलन, और रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम रहनुमाई हासिल करो, रास्ता पाओ। वो अलामात, और अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ बनाई, व बिन नज्मि हुम यहतदून, और सितारे के ज़रिया से भी ये लोग रास्ता पाते हैं। इसके अंदर में उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सफ़र करने को आसान कर दिया। आदमी एक मरतबा सफ़र कर लेता है, पहली मरतबा जब सफ़र करता है तो पूछता पूछता भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। एक मरतबा सफ़र कर लिया तो वो याद रखता है कि इतना रास्ता लंबा होता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ना पड़ता है, फिर कोई बस्ती आती है, या कोई दरख्त आता है, या कोई समंदर आता है, या कोई नहर आती है, कोई पहाड़ आता है। तो इसकी वजह से जो है ये रास्तों को याद करता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को पैदा न फरमाता और चटियल मैदान बना देता, निगाह पहुँचे वहाँ तक सारी ज़मीन को, तो फिर इंसान अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच नहीं सकता, या अगर पहुँचता भी तो बड़ी मुश्किल से मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें भी इंसान के फ़ायदे के लिए बयान फरमाई। वह अलामात, और अलामतें और निशानियाँ भी अल्लाह ताला ने रखी। और वह बिन नज्मि हुम यहतदून, सितारों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, ये भी किसी न किसी मंशा और मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ही उसका मंशा और मकसद जानते हैं कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इन सितारों को पैदा फरमाया। तो उनके फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि आदमी सितारों के ज़रिया से रास्ते की रहनुमाई हासिल करता है। रास्ते की रात के वक्त के अंदर में अगर वो सफ़र करता है तो आसमान के ऊपर में सितारे जो होते हैं, ख़ास करके एक शिमाल की जानिब के अंदर एक बड़ा सितारा होता है, कुतुब शिमाली जिसको कहा जाता है। और पुराने ज़मानों के अंदर में उसी को देख करके कश्ती के अंदर में जो लोग सफ़र करते थे, उसी को देख करके अपनी सीमत को और अपनी जिहत को मुतय्यन करते थे कि भाई ये मशरिक़ के अंदर में ये जिहत है, और ये मगरिब है, और ये शिमाल में है, और ये जुनूब है। इस तरीके से वो रास्तों को मुतय्यन करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सितारों के पैदा करने के अंदर में और फ़ायदों के साथ साथ एक फ़ायदा ये भी है कि सितारों के ज़रिया से लोग जो हैं वो रास्ते की रहनुमाई हासिल करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाई। इंसानों के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात फरमाए, और इन तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। तो गोया इन चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दावत देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, और अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, और इसके अलावा कोई खालिक और मालिक नहीं है। जब वही पैदा करने वाला है आसमानों का, ज़मीनों का, इंसानों का और सारी मखलूक का, तो वही इबादत के लायक और हकदार वही है। और अल्लाह तबारक व तआला ये खालिक और मालिक है, इबादत के लायक है। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो बूतों की पूजा करते थे और इबादत करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला आगे उनको दावत देते हैं कि एक तरफ अल्लाह की ज़ात है जिसने कायनात को पैदा किया, दूसरी तरफ ये बुत हैं जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया, बल्कि ये बुत अल्लाह के पैदा किए हुए पत्थरों से तुमने बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला आगे दावत देते हैं कि अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, वो ज़ात
کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرتی ہے وہ برابر ہو سکتی ہے اس چیز کے کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتی؟ یعنی بت گویا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے خالق کے کائنات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتوں کے برابر قرار دے دیا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اس طریقے سے یہ لوگ بتوں کی بھی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کا لائق بھی وہی ہے۔ یہ بت اور مورتیاں یہ پتھر سے بنائی گئی ہے اور ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑا ہوا ہے، نہ یہ نفع کی مالک ہے اور نہ یہ نقصان کی مالک ہے، بلکہ ان بتوں کے اوپر میں جو مٹھائی کی شکل کے اندر میں اگر چڑھایا جاتا ہے اس میں سے اگر کوئی مکھی کھینچ کر کے لے جائے تو اس سے یہ بت واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تو ساری نعمتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، اس کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اللہ کی ان نعمتوں کو اور اللہ کے انعامات کو اللہ نے ذکر فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے، ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کے رسول کی بات کے اوپر میں عمل کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ بھی ہو گیا، اگر کفر ہو گیا یا شرک ہو گیا یا بدعت ہو گئی یا نافرمانیاں ہو گئی اور معصیت اور گناہ ہو گئے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آدمی سچے دل سے اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آدمی اگر زبان سے نہ بھی بولے، دل کے اندر میں پکا ارادہ کر لے، تہیہ کر لے نافرمانی نہ کرنے کی وغیرہ، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، اور وما تعلنون، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں۔ یہ معبودان باطلہ اور یہ بت اور یہ مورتیاں لا یخلقون شیئا، کسی بھی چیز کو یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، اللہ کی طرف سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، پتھر کی شکل کے اندر ان کو پیدا کیا گیا، انسان نے اس کے اندر میں تراش کر کے اس کو مورتی بنائی اور کسی دیوتا کی شکلوں اور صورت بنائی، اپنی بنائی ہوئی چیز کے سامنے پھر اپنے سر کو وہ جھکاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، یہ بت اور مورتیاں یہ تو مری ہوئی چیزیں ہیں، پتھر ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ بتوں کی عبادت اور پوجا کرنے والے مکہ کے مشرکین اور کفار کسی قسم کا شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں رکھتے ایان یبعثون کہ ان کو کب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، چنانچہ وہ لوگ کہ جو آخرت کے دن کے اوپر میں یا آخرت کے اوپر میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو ان کے دل جو ہے ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نعوذ باللہ زندہ نہیں ہونا ہے، سوال جواب نہیں دینا ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور اوپر سے یہ
तकब्बुर करने वाले हैं, किब्र करने वाले हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, यकीनन बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन तमाम चीज़ों को जिनको वो लोग अपने दिलों के अंदर में छुपाते हैं, और जानते हैं उन तमाम चीज़ों को जिनको वो लोग ज़ाहिर करते हैं अपनी ज़बानों के ज़रिया से। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, लेकिन बात ये है और अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि ये तकब्बुर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। तकब्बुर करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत नहीं फरमाती। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने इन तमाम चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद जब उनसे पूछा जाता कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया, वइज़ा क़ील लहुम, और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को जब कहा जाता माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा, क़ालू, तो जवाब देते असातीरुल अव्वलीन, ये तो अगले लोगों की किस्सा कहानियों की बातें हैं, या अगले लोगों की झूठी कहानियाँ हैं। कुरान के बारे में इनसे जब पूछा जाता था कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा, तो कुरान को जो है गोया एक नाविल और एक झूठी किस्सा और कहानियों की किताब कहते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि खुद भी उन्होंने ईमान का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, कुरान पाक का इनकार किया, और कुरान पाक के वही इलाही और कलामुल्लाह होने का इनकार किया, और दूसरों को भी मानने से रोका। तो अपना गुनाह अपने सर और दूसरे के भी कुछ गुनाह उन्होंने अपने सर ले लिए। तो इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामती, ताकि ये लोग अपने बोझों को उठाएंगे कामिल और मुकम्मल तौर पर, पूरा यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम, और उन लोगों के लिए कुछ बोझों को उठाएंगे कि जिनको ये लोग गुमराह करते हैं, बिग़ैर इल्म, जहालत के साथ, बगैर इल्म के जो गुमराह कर रहे हैं, तो उनका बोझ भी ये लोग उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैदान हश्र के अंदर में ये जब अपने गुनाहों का बोझ लेकर के आएगा और दूसरे लोगों के गुनाहों का बोझ भी अपने सर के ऊपर में उठाया हुआ होगा, तो फरमाते अल्लाह ताला अला साअ मा यज़िरून, सुनो ये कितने ही बुरे बोझ को ये लोग उठा रहे हैं। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर में जो अल्लाह ने इनामात फरमाए और नेमत नाजिल फरमाई, इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में बयान फरमाया। और चूँकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसीलिए सूरतुन नहल का दूसरा नाम सूरतुन निआम भी रखा गया है। और फिर आइंदा कल आगे अर्ज़ करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।